Hello student, welcome to a new video on exercise 6.4. Basically in 6.4 we will be dealing regarding long division process of square root. Since you know that in the previous note which I provided regarding square root, the symbol for square root is represented in this manner. So you will be dealing with long division of square root and operations like plus and minus of converting non-perfect square numbers into perfect square and some related word problems. These three will be discussing in exercise 6.4. So I will give you some examples related to long division. If you understand the example completely, I am sure you can solve any sort of questions related to long division. So exercise 6.4 question number 1 related example. Clear? So for example, if I take a question 529, you need to find the square root of 529 by using long division process, which is the topic of today's discussion. Long division process. So first step, you need to draw a structure like this. You need to place the dividend inside the box. It's step number 1. Step number 2, you need to place bars or underlines from right to left. Since I was having 3, you need to pair by placing bars from right to left. This is step number 2. Step number 3, the number or the digit which is there in first starting place is 5 in this given question. You need to find a square number. No need of doing normal division which we have learned in previous classes. You need to find square number. What are the square numbers? 2 into 2, 4, 3 into 3, 9, 4 into 4, 16, ... This you need to think of. So imagine 5 is nearer to 2 square. Clear? 5 is nearer to 2 square, because if you take 3, it will be 9, more than the required question. So we will be choosing 2. So 2 2 ja 4, you need to subtract. तो 5 से 4 जाने से 1. अभी नीचे क्या आएगा, हम लोग नॉर्मल में क्या लाते थे, सिंगल को, लेकिन अभी लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट के चैप्टर में फिर टॉपिक में आपको क्या लाना है, पूरा पेयर वाला सेट नंबर को लाना है. पेयरिंग में कौन है 29, उसको पूरा लाना है. नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है आपका डिवाइजर जो था 2 डिवाइजर, वो नेक्स्ट स्टेप में ट्वाइस हो जाएगा, डबल, मतलब 2 into 2 विच इज इक्वल्स टू 4 लिखने के बाद उसके बगल में एक अंडरलाइन करोगे. वाई दिस इज नीडेड आई विल एक्सप्लेन यू. क्लियर? तो अभी मैंने आपको नोट्स जो प्रोवाइड किया था, आपको उसमें पता ही होगा, मैं आपको एक ट्रिक उसमें एक टेबल में दिया था. वो ट्रिक क्या था, कोई भी स्क्वायर नंबर अगर 1 से और 9 से एंड हो रहा है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा. क्लियर? अगर कोई भी स्क्वायर रूट 1 से एंड हो रहा है, जब आप उसका स्क्वायर रूट ढूंढोगे तो उसका यूनिट प्लेस में अगर 1 होगा, नहीं तो 9 होगा. क्लियर? सिमिलरली और एक जो दिया था 2 और 8, किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड वाला डिजिट अगर 8 है, जब उसका स्क्वायर रूट ढूंढोगे उसके यूनिट प्लेस में इधर 2 होगा, नहीं तो सॉरी ये 4 2 और 8 4. तो किसी भी स्क्वायर नंबर के पीछे अगर 4 से एंड हुआ है तो उसका यूनिट प्लेस में आपका होगा 2 या फिर 8.
ऐसे बोल के आपको एक टेबल का नोट्स मैंने आपको भेजा था, वही दिमाग हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। तो सिंस द नंबर एंड विद द डिजिट 9, तो पॉसिबल आउटकम 9 कहाँ पे था, 3 या फिर 7 था। आप टेबल भी देख सकते हो, 3 और 7 को ही स्क्वायर करने से 9 में एंड हो रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 एंड विथ 9। तो विल बी चेकिंग विच इज़ द प्रिफरेबल डिजिट। जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, इस अंडरलाइन में हमेशा डिजिट डालना होता है, कभी भी नंबर्स को नहीं डालते, डिजिट डालना होता है। डिजिट क्या है आपका, डिजिट है आपका 1 to 9, या फिर यू कैन यूज 0 to 9। क्लियर, दीज आर द डिजिट्स। तो you need to check by putting a digit in the dash. How to check? See. So 4 dash. Imagine what are the possible outcomes, 3 or 9. You have already thought of that number. So let me put 3 in the place. If I put 3 in the dash, I should multiply the number with 3. If I put 4 on the dash, I should multiply the whole number with 4. If I put 6 on the dash, I should multiply the whole number with 6. This is the criteria. Clear? So 3 3 is 9, 3 4 is 12. You get the exact required number. So I will be putting 3 here and 3 in the quotient. Here's answer is, remainder will be 0. Therefore, square root of 5 to 9 will be 23. That means if you multiply 23 with 23 twice, you will be getting 529 as the answer. Move to another question related to question number 1, that is long division process. I hope you have understood very well. Let me take another example. 4 to 2 5. 4 to 2 5. तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसका नंबर्स को प्लेस करना है, और स्टेप नंबर 2 है राइट साइड से पेयरिंग करना है बाय प्लेसिंग बार्स। तो ये एक बार हो गया, एक बार हो गया। देख सकते हो आप, अगर आपका क्वेश्चन में जब पेयरिंग किया जाता है बाय यूजिंग बार्स, इफ यू गेट 2 बार्स, योर आंसर विल बी ऑफ 2 डिजिट नंबर। बाय प्लेसिंग द बार, इफ यू गेट 3 बार्स, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वॉज 2, तो यू गॉट 23, तो 2 डिजिट होना। वैसे ही अगर बार को प्लेस करोगे, जितना बार बनेगा उतना डिजिट का ही स्क्वायर रूट निकलेगा। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग स्क्वायर नंबर को सोचेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 42। तो 42 को नियरेस्ट क्या हो सकता है, तो इमेजिन करो स्क्वायर नंबर, नॉट नॉर्मल नंबर्स। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49. So you can see which one is the nearest to 42, that is 6. So 6 6 is 36. When you subtract 42 from 36, you get 6 in the remainder. Next step will be coming down of 2 5 as a pair. उसके बाद क्या है थर्ड स्टेप, इधर जो था डिवाइजर उसको क्या करना है, डबल करना है। डबल मतलब ट्वाइस, इंटू 2 करना है, 6 इंटू 6 मत कर देना है। 6 इंटू 2 इज 12, फिर से डैश। सिंस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नंबर एंड विथ 5। तो अगर वो टेबल अगर आपको याद होगा जो नोट्स में दिया था, कोई भी स्क्वायर नंबर के पीछे अगर 5 में एंड हुआ है, उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 5 ही होगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो डैश में 5 डालूंगा और ये नंबर से किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। जो आपको आगे 5 5 जा 25, 5 रे के 2 गया, 5 2 जा 10 + 2 12, 1 गया, फिर 5 1 जा 5 6। तो 5 जा 6 25, रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4225 विल बी 65। क्लियर? तो मैंने एक 3 डिजिट का नंबर कर लिया है, अभी 4 डिजिट का है। अभी थोड़ा बड़ा डिजिट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूज़न कोई भी बिट्स में ना रहे, और एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप लिख ही सकते हो। और हमेशा डैश में डिजिट को डालना भूलना नहीं, नंबर को भूल से भी मत डालना, डिजिट को ही डालना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, 3906
25। तो ये थोड़ा बड़ा वाला नंबर है, तो पहला ड्यूटी आपका है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, फिर नंबर को लिखना। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट साइड से पेयरिंग करना बाय प्लेसिंग बार अबव द नंबर। तो इधर कितना बार मिला मुझे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 बार मिला, मतलब इसका आंसर जो होगा 3 डिजिट का सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। क्लियर। तो पहले हम लोग सोचेंगे 39 के बारे में। तो आप दिमाग में जल्दी से कैलकुलेशन करो, 39 के आसपास स्क्वायर नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 6 है, क्योंकि अगर मैं 7 को चूज़ करूँगा रिक्वायर्ड नंबर से बहुत ही बड़ा हो गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो 6 है 36, माइनस करने से कितना आया 3। अब नीचे क्या आएगा, पूरा पेयरिंग नंबर क्या है 0 6। अभी क्या करेंगे हम लोग, डिवाइजर जो था स्टेप नंबर 1 में, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, मतलब इंटू 2। तो 6 2 जा 12, फिर डैश। डैश में हमें डिजिट सोचना है, ये आपका आखिरी वाला चीज़ नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 6 है सर, हम लोग 4 यूज़ कर सकते हैं, 6 यूज़ कर सकते हैं, ऐसे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपका नंबर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी और 25 ऊपर बचा है। क्लियर। तो योर नंबर इज़ 306। यू नीड टू प्लेस ए डिजिट इन दिस प्लेस सो दैट यू विल बी गेटिंग नियर टू 306। क्लियर। तो मैं चेक करता हूँ आपको रफ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ राइट साइड रफ होना ज़रूरी है मैथ्स में। तो चेक करो, मैं 1 डाल के चेक कर रहा हूँ। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अभी 2 डाल के चेक कर रहा हूँ डैश में। अगर डैश में 2 डालूंगा, पूरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी हम लोग 3 में चेक कर लेते हैं, 1 2 3, तो इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा नियरर है, ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट प्लेस। तो आई विल पुट 2 इन द डैश एंड अबव 2। तो व्हाट इज द आंसर, 244। देन आई नीड टू सब्सट्रैक्ट इट। व्हेन यू सब्सट्रैक्ट इट यू विल गेट 6 2। अभी नीचे क्या आएगा, 2 5 जो बैलेंस है इधर, दैट विल बी कमिंग डाउन। अभी आपको क्या करना है, जो डैश में है उसको ट्वाइस करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाहर 12 है, डैश में क्या है 2 है, इसीलिए डैश देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्क्वायर रूट के लॉन्ग डिवीज़न वाले पार्ट में। जो डैश में है उसको ट्वाइस करना है। क्लियर। तो पहले क्या था, 12 था, इसको ट्वाइस करना कितना 4। और एक इंस्टेंस में देता हूँ, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 12 डैश में सोचो 6 था। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको मैं डबल करूँगा, ये कितना होगा 12 होगा, तो इधर रहेगा 2। मैंने बोला था डिजिट रहेगा, कभी नंबर नहीं, तो 1 कैरी हो जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा 3, फिर ये इतना हो जाएगा नंबर, फिर डैश। क्लियर। तो इधर 2 है बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, इधर 4 लिख दिया, ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ क्यों, कुछ कैरी हो आया ही नहीं, फिर से डैश। क्लियर। जब भी ट्वाइस करने से अगर डबल वाला डिजिट आता है, यूनिट प्लेस को रख के बाकी ट्रांसफ़र कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। फिर डैश, इसलिए डैश देना बहुत ज़रूरी है। अभी वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नंबर, तो 5 में एंड हुआ, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली 5 जा। तो 6 2 2 5, रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 390,625 विल बी हाउ मच, 625। मैंने कहा था ना आपको, अगर नंबर को बार प्लेस करने के बाद अगर आपका 3 बार मिल रहा है, तो आपका डिजिट भी 3 डिजिट, आंसर जो होगा 3 डिजिट का होगा। ये वाला एसेंशियल है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये था होल नंबर्स के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 6.4 एक्सरसाइज में अवेलेबल क्वेश्चंस है। अभी मैं कुछ डेसिमल का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चाहिए। क्लियर। तो विल मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 will be 51.84. This is a decimal. If you have understood the long division process of whole numbers, then it is very easy to deal with the decimal type of numbers. See how to do the process. First step, do the structure, place the number,
inside the structure, put the bar from right to left by pairing it. Now think of a square numbers, not normal number, square number. तो 51 के पास स्क्वायर नंबर क्या होगा, 7 7 जा 49, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा रिमाइंडर, ऑब्वियसली 2। अब 51 का पार्ट हो गया ख़त्म। 51 के बाद हमारा क्या है, 84 नहीं है, 51 के बाद डेसिमल है जो आपको कोशेंट में डालना है, फिर जो पेयरिंग वाला नंबर है उसको शिफ्ट करना है। इट्स 284, इट्स ए मार्क विच इज़ अवेलेबल इन द वाइट बोर्ड, डोंट बी कन्फ्यूज सर वेयर फ्रॉम 2184 यू हैव गॉट, क्लियर, इट्स ए मार्क, जस्ट ए मार्क्स। तो योर नंबर इज 284 ओनली। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्वाइस करना है, तो 7 × 2 इज 14, फिर से डैश। सिंस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नंबर, तो 4 का पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब अगर ये एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो एंड हुआ है 4 में, तो पॉसिबल आउटकम क्या है 4 का, इधर आपका होगा 2 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर किस में एंड होता है, 4 में, 8 का स्क्वायर 64 एंड किस में हुआ, 4 में। तो हम लोग चेक करेंगे डैश में क्या क्या डाल के, इधर 2 नहीं तो 8, ये है आपका ट्रिक, नहीं तो आप ढूंढते ही रहोगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, you get exact number 284 minus 0. Therefore, square root of 51.84 will be how much, 7.2. Clear? तो लास्ट एग्जाम्पल में कर लेता हूँ डेसिमल का ही। तो लास्ट क्वेश्चन है डेसिमल का, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ज़रूरी है। 5th वाला एग्जाम्पल है 477.4225। क्वेश्चन क्या है, 477.4225। नंबर को देख के आप डरो मत, जितना बड़ा नंबर होगा लॉन्ग डिवीजन में वो उतना ही इजी रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने के सॉल्यूशन को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर को प्लेस कर लेते हैं 0.4225। क्लियर? अभी क्या करना है, पेयरिंग करना है फ्रॉम राइट साइड। ये सिंगल है, उसको भी पेयरिंग कर लोगे, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेफ्ट में के 0, तो ऑब्वियसली वो डबल के जैसे ही लग रहा है आपको। तो इसमें कितना बार्स आया आपका, 1 2 3 4, तो इसमें आएगा 4 डिजिट वाला नंबर, लेकिन बीच में एक डेसिमल आएगा, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या है 4, तो सिंपल 2 2 जा 4, तो माइनस करने से 0 हो गया। नीचे क्या आएगा 7 7, क्योंकि पेयरिंग वाला नंबर था 7 7, हमें इसको क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो 4 डैश। दिमाग मत लगाओ, अभी नंबर खत्म नहीं हुआ, तो 77 के आसपास आपको ढूंढना है, किस टेबल में, 40 टेबल में, क्योंकि इधर जो भी डिजिट में डालूंगा डैश में वो 40 टेबल ही कहलाएगा, इधर 40 41 42 43 डॉट 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 अप टू 49। तो लेट मी चेक विथ फ्यू डिजिट्स। तो मैं अगर 1 प्लेस कर रहा हूँ डैश में, नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, अगर उस डैश में डिजिट को 2 डाल रहा हो तो पूरा मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, जो आपका हो गया 84। रिक्वायर्ड नंबर से बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं इसको चूज़ करूँगा, 1 जा 1 जा, तो हाउ मच 41, तो माइनस करने से कितना आएगा रिमाइंडर 36। अभी नीचे क्या आएगा आपका 42, और 77 के बाद क्या है ऊपर, क्या प्लेस करोगे, डेसिमल, क्योंकि 77 के बाद 42 नीचे आया, उससे पहले क्या है डेसिमल, तो ऊपर क्वेश्चन में प्लेस कर दोगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो डैश में वो डबल होना है, तो उसको डबल करने से 2 सिंगल डिजिट आ रहा है, तो नो नीड ऑफ चेंजिंग द लेफ्ट साइड डिजिट टू डैश। क्लियर? अभी फिर से हम लोग इसका क्लोज नंबर को ढूंढेंगे, तो 42 डैश, मान के चलो मैं इस डैश में 5 को डाला, क्योंकि हमें हिट एंड ट्रायल डालना है। 5 5 जा 25, 5 रह के 2 गया, 5 2 जा 10 + 2 12, 2 1, 5 4 जा 21 + 1 21, बहुत ही दूर है नंबर, हम लोग थोड़ा क्लोज करते हैं, तो 42 डैश में 8 डाला। क्लियर? तो हाउ मच, 8 8 जा 64, 4 रह के 6 गया, 8 2 जा 16, 16 में 6 कितना 22, 2 रह के 2 गया, फिर 8 4 जा 32,
34, तो आपका आया नंबर 34। तो दिस इज़ क्लोजर। अगर हम लोग 9 से करेंगे रिक्वायर्ड नंबर से बहुत बड़ा ही आएगा। तो 8 जा 8 जा, तो 3 4 2 4, सब्सट्रैक्शन करने से कितना हो रहा है? रिमाइंडर 218। क्लियर? अभी क्या होगा? नीचे कौन आएगा? रिमेनिंग क्या है? ऊपर 25। अभी इंटरेस्टिंग है, देखो किसको डबल करोगे आप? ऑब्वियसली जो डैश में है। तो डैश को डबल करने से कितना हो रहा है? 8 2 16, 6 रह के 1 गया, तो 2 1 3, फिर 4 का 4, फिर डैश। इसको रफ में करके दिखा दे तो कैसा हुआ? डबल था क्या? डबल किसको करना है? डैश को। तो 8 2 16, 6 रह के 1 कैरी हो रहा है ना, 2 + 1 3, तो 4, इसलिए 436 विथ डैश, क्योंकि हमें और एक डिजिट ढूंढना है। तो एज द नंबर एंड विथ 5, तो ऑब्वियसली इट विल बी 5। तो 21825 माइनस कर 0 आया। देयरफॉर रूट ओवर ऑफ 477.4225 विल बी हाउ मच? 21.85। तो इस तरीके से आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आराम से सॉल्व कर पाओगे। So now we'll move to question number 2 of exercise 6.4. So in exercise 6.4 in question number 2 it is given that find the number of digit in the square root of each of the following numbers without any calculation. मतलब आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया है बिना कोई प्राइम फैक्टरेशन मेथड पे या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड अपना के आपको बताना है अगर आप इस स्क्वायर नंबर का अगर स्क्वायर रूट ढूंढोगे तो कितना डिजिट का एंड होगा। प्रीवियसली मैं बता चुका था क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का जब क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, जो बार्स को प्लेस करोगे जितना बार आएगा उतना डिजिट का वो नंबर होगा। क्लियर? तो आई विल बी टीचिंग यू 2 मेथड ऑफ डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, विच एवर मेथड यू फील द बेस्ट एंड द बेटर you will be applying in your respective homework copies of yours. So let me start with a bit number C, 4489। तो इसको मैं मेथड 1 में ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। मेथड 1 क्या है? तो मेथड 1 ये है कि यू नीड टू प्लेस बार्स। तो बाई प्लेसिंग बार्स हमेशा कहाँ से प्लेस किया जाता है? राइट से लेफ्ट तक। तो 4 4 8 9 बार प्लेस करो। कितना बार आया? 2 बार। तो ऑब्वियसली ये डबल डिजिट का आंसर होगा। फुल स्टॉप। सिंस there are 2 bars, the square root will be of 2 digit। ये था मेथड 1। मेथड 2 में और एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्टीज ना हो। तो ई नंबर क्वेश्चन के लिए मेथड 2 कर रहा हूँ। तो ई नंबर बिट क्या दिया है? 390625। 390625। तो क्वेश्चन दिया है 390625। तो मेथड 2, मेथड 2 में आपको नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है। तो इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो मैं आपको अभी 2 फॉर्मूला बताया। तो केस 1, इफ n इक्वल टू इवन, अगर आपका n मतलब क्या? नंबर ऑफ डिजिट अगर इवन आया उसके लिए फॉर्मूला है n/2। क्लियर? केस 2, अगर आपका n ऑड आया इसके लिए फॉर्मूला है n + 1/2। ये भी एक फॉर्मूला है। क्लियर? तो अभी
ये वाला फॉर्मूला इवन के लिए है तो अभी मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। 10 the square root will have n by 2, मतलब n कितना है इधर, n है 6/2 इक्वल टू 3 डिजिट्स। क्लियर? ये भी एक तरीका है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 दो वेराइटीज़ में सॉल्व हो गया, एक था मेथड 1 और एक मेथड 2। विच एवर मेथड यू फील कन्वीनियंट, ईजी, प्लीज अडॉप्ट दैट मेथड फॉर योर फ्यूचर नॉलेज। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following number so as to get perfect square। आपको एक नंबर दिया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है ही नहीं। क्लियर? तो आपको क्या करने के लिए बोला है, उसमें से कितना माइनस करोगे ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको ढूंढना है। तो मैं बिट नंबर बी कर रहा हूँ जो कि दिया है 1989। आपको याद होगा नॉर्मल डिवीज़न में जब सोचो क्वेश्चन दिया है नॉर्मल डिवीज़न वाला, डिवाइड 9/2, तो आप क्या करते थे, 2 डिवाइजर था, डिविडेंड था 9, 2 4 जाएगी 8, नियरेस्ट वाला 1, रिमाइंडर था 1। अगर आप रिमाइंडर को डिविडेंड के साथ माइनस करोगे जो आएगा आंसर वो 2 में डिवीज़न होता था। तो 9 से अगर 1 को माइनस करो कितना होगा, 8, 8 इज डिविजिबल बाय 2 ना। सेम प्रोसेस यू नीड टू अडॉप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए कभी भी नहीं करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ सुइटेबल है मल्टीप्लिकेशन पार्ट के लिए और डिवीजन पार्ट के लिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए लॉन्ग डिवीजन ही सुइटेबल है और करेक्ट वाला प्रोसेस है। तो पहले नंबर्स को प्लेस करेंगे 1989। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बार्स बनाना, पेयरिंग करना। फिर 19 का नियरेस्ट नंबर क्या होगा, 4 4 जा 16 स्क्वायर नंबर होगा, माइनस करने से कितना आया 03 या फिर 3। अभी 8 9 नीचे आएगा, इसको क्या करना है, ट्वाइस करना 8 डैश। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको नियरेस्ट वाला नंबर ढूंढना है बाय नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो लेट मी चेक बाय पुटिंग डिफरेंट डिजिट्स। तो 3 डाल के मैं पहले चेक कर देता हूँ। तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो लेट मी चेक विथ अनदर डिजिट लाइक 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ 32 33 विच इज़ क्लोजर। क्लियर? तो 4 जा 3 3 6, माइनस करने से रिमाइंडर आ रहा है 53। नेक्स्ट ये क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट टेबल जो होगा वो 3 डिजिट का टेबल होगा। 3 डिजिट का भी टेबल में 2 डिजिट वाला नंबर मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपका रिमाइंडर कितना आया 53। तो रिमाइंडर इज 53। क्लियर? सो if we subtract 53 from 1989 we will get a perfect square number. Clear? That is I dot E 1989 minus 53 which is equals to 1963. Clear? तो 1919 माइनस, फिर से कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं सब्सट्रैक्शन पार्ट को। 1989 माइनस, रफ करना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं भी आपके लिए रफ कर रहा हूँ साइड में। तो 9 से 3 जाने से 6, 9 से 3 जाने से 6,
8 से 5 जाने से 391, तो आया 1936 जो कि 44 का स्क्वायर रूट है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इक्वल टू 44। आपको रफ करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो अभी हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसका हेडिंग दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको गिवन क्वेश्चन में क्या एक छोटा सा नेचुरल नंबर मिला होगा ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर वो बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट दोबारा ढूंढना है। तो एडिशन का रूल मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, लॉन्ग डिवीजन करना। तो मैं इसका ई वाला बिट कर रहा हूँ जो कि है 6412। 6412। तो फर्स्ट वाला स्टेप क्या है, बार्स प्लेस करना। तो 64 को 64 जो दिया गया है उसका नियरेस्ट क्या होगा, 8 8 जा 64, रिमाइंडर विल बी 0। अब नीचे क्या आएगा 12 और ये क्या होगा डबल, तो 16। क्लियर? तो अभी ये 16 फिर डैश, तो ये 3 डिजिट की टेबल में कभी 2 डिजिट नहीं आएगा, तो इतना रह गया आपको। एडिशन का रूल क्या है ये, तो अभी आप क्या करोगे, ये रिमाइंडर है 12। क्लियर? तो अभी क्या करोगे आप 0 जाए, क्योंकि 12 से छोटा 160 के टेबल में 116 या फिर 160 के टेबल में क्या होगा 0 0 जाए, रिमाइंडर है 12। एडिशन का रूल है जो क्वेश्चन आया होगा उसका नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन कितना है 80, 80 का नेक्स्ट नंबर क्या है 81, उस स्क्वायर नंबर से इसको सब्सट्रैक्शन करना है। मतलब ये वाला जो आपका आया दिस नंबर, अगर वो 80 से बराबर होता तो ये 0 आता। ये बड़ा बराबर नहीं है, ज़्यादा आ रहा मतलब क्या है, बड़ा है 80 से। तो जो आपका नंबर है इधर मैं लिख देता हूँ, रिमाइंडर इज 12। बट 80 का स्क्वायर छोटा हो रहा है 6412 के लिए, लेकिन वो बड़ा होगा 81 का स्क्वायर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट 80 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 81, काउंटिंग नंबर 81 उसका स्क्वायर। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 81 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन। तो 81 का स्क्वायर है 6561, 6561 माइनस 6412, जिसको माइनस करने से आ रहा है, हम लोग रफ यूज़ करेंगे 6561 माइनस 6412। तो 1 से 2 नहीं जाएगा, ये हो गया 11, 11 से 2 जाने से 9, ये हो गया 5, 5 से 1 जाने से 4, और ये है 14, 149 है आपका बैलेंस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 149 इसमें ऐड करूँगा, पूछा था लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, इसमें ऐड करूँगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज 149। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 6561, और आप अभी इसको मिला के भी लिख सकते हो 6412 प्लस 149 इक्वल टू 6561, इसका स्क्वायर रूट होगा कितना 81। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 1441 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको एरिया कितना दिया है 441 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया है, और एक क्या पूछा है वो लेंथ ऑफ द साइड, ईच साइड का लेंथ पूछा है। तो मुझे पता नहीं एक एक साइड का मेजरमेंट कितना होता है, लेकिन ये पता है कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैंने x ले लिया, तो सभी क्या होगा x होगा।
तो लेट मेजर ऑफ ईच साइड बी x मीटर। क्लियर। तो अब हमें पता है कि एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड। एरिया का वैल्यू कितना दिया है 441 इक्वल टू साइड का वैल्यू कितना x इंटू एक्स। तो 441 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने प्रीवियस में कहा था कि जब स्क्वायर नंबर या फिर पावर 2 जो होता है वो अगर और एक्स से शिफ्ट होगा वो होगा स्क्वायर रूट है। तो x इक्वल टू क्या हो गया रूट ओवर ऑफ 441। तो इसको आप इधर प्राइम फैक्टरेशन करो या फिर लॉन्ग डिवीजन करो जो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आपका होगा 21 इंटू 21। तो पेयरिंग करने से कितना निकला 21 मीटर। देयरफॉर रफ वर्क करोगे आप इसका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड करके। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड इज 21 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7 नंबर। इफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC where angle B is 90 you can see you need to find the two bits given। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ होता है। इस पार्ट को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये वाला वो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर के 9 डिग्री वाला जो लेंथ है उसको बोलते हैं हाइट। क्लियर। और द साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल 90 का जो ऑपोजिट साइड है या फिर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये 3 एलिमेंट जो आप क्लास 7th में भी पढ़े थे ट्रायंगल के चैप्टर में। तो अभी क्वेश्चन में बिट 2 ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। बिट ए भी उसी तरीके से आपको करना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, AC का लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर मतलब हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया है, BC मतलब बेस दिया 5 सेंटीमीटर और AB आपको पूछा है। तो आप क्लास 7th में पढ़े थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इधर हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है क्वेश्चन में AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का नाम क्या है BC का स्क्वायर प्लस हाइट का नाम है AB तो उसका स्क्वायर। अभी जिसका जिसका वैल्यू आपको पता है उसका सब्स्टिट्यूट करिए। AC का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर। क्लियर। फिर आपका आ गया BC का वैल्यू 5 का स्क्वायर और AB आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। तो 13 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 169 इक्वल टू 25 प्लस AB का स्क्वायर। तो आप लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़े नंबर विल बी शिफ्टेड टू नंबर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच AB स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। तो AB स्क्वायर होगा कितना माइनस करने से आपका आएगा 144। तो स्क्वायर जो पावर है 2 वो शिफ्ट करने से क्या होगा स्क्वायर रूट। तो AB इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 144। तो 144 आपको पता ही होगा 12 का होता है बोल के। तो AB इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 12 इंटू 12। तो पेयरिंग करने से कितना निकला 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ AB इज 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें दिया है कि ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिला आपको गार्डनर के पास कितने प्लांट है 1000। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू 1000। नेक्स्ट क्या दिया पॉइंट ही वांट टू प्लांट देयर इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स विल रिमेन सेम। मतलब आपका जब वो प्लांटिंग करेगा एक फील्ड में जितना ठो रोज बनेगा उतना ठो कॉलम्स बनेगा। क्लियर। आपको कंडीशन दे दिया है कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर क्या दिया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर और कितना उसको चाहिए। और दिस सेम क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर
5 जो कि एडिशन वाला था, और उसको और कितना चाहिए पूछा है और कितना उसको चाहिए को, क्लियर। तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन में कर लेते, पहले पेयरिंग कर लेते। तो पहला मिला 10, तो 3 3 जा 9, बैलेंस रहा 1, फिर 0 0, फिर ये कितना हुआ, 3 को डबल ट्वाइस करने से कितना होगा 6, फिर डैश 2 डालने से 120 ऊपर हो जाएगा, तो 1 डाला मैंने इसीलिए, तो 61 माइनस करने से रिमाइंडर आ रहा है आपका 39। तो व्हाट शुड बी एडेड वाला रूल इधर अप्लाई करें। क्यों अप्लाई करें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि और उसको मिनिमम और कितना प्लांट चाहिए ताकि वो इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर पाएगा। तो एडिशन का रूल क्या है, जितना भी क्वेश्चन आया उसका नेक्स्ट स्क्वायर नंबर से सब्सट्रैक्शन करना है। तो 31 का नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 32 नंबर है 32, दस 31 square is less than 1000 or greater than 32 square, clear। Hence the number of plants the gardener needs equal to 32 स्क्वायर माइनस 1000। तो 32 स्क्वायर कितना 1024 माइनस 1000 इक्वल्स टू 24। उसको 24 प्लांट्स चाहिए ताकि वो अपना गार्डन में इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा प्लांट्स को। ये था क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप इजीली कर पाओगे या फिर मैं कर ही लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना दिया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 500, क्लियर। फॉर a PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows will be equal to number of columns। तो जितने रोज बनेंगे उतने तो कॉलम्स होना जरूरी है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट आउट, कितने बच्चों को रिमूव करना है। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्शन वाला रूल वाला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े थे हम लोग। क्योंकि इसमें रिमूव करना है, रिमूव करने का रूल क्या है, रिमाइंडर को माइनस करना है। तो पहला ड्यूटी आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में नंबर को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर बार प्लेस करना है। तो 5 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 2 2 जा 4, माइनस करने से कितना है 1, फिर नीचे आएगा 0 0। तो 2 को अभी क्या करेंगे, डबल करेंगे, जो होगा 4 डैश, है ना नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर एक वैल्यू को डाल के चेक करेंगे। तो इधर मैं 2 को डाल के चेक करो डैश में, तो इंटू 2 करने से कितना होगा 484। 3 डाल के चेक करने से कितना होगा, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड नंबर से लार्ज ही आएगा। तो हम लोग किसको डालेंगे, 2 जा कितना आएगा 84। तो माइनस करने से कितना रह रहा है बैलेंस 16, क्लियर। तो हमें 16 बच्चों को रिमूव करना है। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर है 16। हैंस लेफ्ट स्टूडेंट्स कितने हैं, बच्चे लेफ्ट हो गए, 16 स्टूडेंट लेफ्ट हो गए, क्लियर। क्योंकि रिमाइंडर जितना होगा उतने बच्चे लेफ्ट हो गए आपके ड्रिलिंग में। देयरफॉर 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस PT ड्रिल। कितने बच्चों को रिमूव करना है क्वेश्चन में दिया थे। अगर 16 बच्चों को रिमूव करेंगे कितने बच्चे अटेंड करेंगे, 284, जो पूछा नहीं मैं बता दीजिएगा आपको, क्लियर। 284 बच्चे अटेंड करेंगे PT ड्रिल को। इस तरीके से आपका 6.4 एक्सरसाइज